everyone, welcome to my channel. My name is Aparna. Today we are going to start a new chapter, that is chapter 18. How does production takes place? So let's start. The production process has four main components: land, labor, capital and entrepreneurship. The, they are economic concepts that have a very specific meaning in the context of production. For example, we generally associate labor with hard physical work, but in the context of production, it means the human contribution to the process, which could be either physical or mental. All four factors are essential for production. We shall try to understand what these economic concepts mean in this chapter. How do they come together in a production process? Who receives what from the process? How much does the worker earn from his contribution? What does the production yield a surplus? The answers to these questions depend on the existing social system in which the production is organized. देखिए यहाँ पर प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन के क्या होते हैं, चार मेन कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि क्या क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, अगर हम लेबर को जनरली अगर कंसिडर करेंगे तो लेबर हम इस तरीके से देखते हैं जिसको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना है, फिजिकल वर्क करना है। लेकिन अगर हम प्रोडक्शन के बेसिस पे जाएंगे तो वो हो सकता है, मतलब फिजिकल वर्क भी हो सकता है और मेंटल वर्क भी हो सकता है। ये जो आपका चारों फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। इस चैप्टर में यहाँ पर आपको इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, जो भी इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्शन प्रोसेस किस तरीके से होता है, किस तरीके से वो प्रोसेस रिसीव होता है, ठीक है, कौन रिसीव करता है, जो वर्कर्स जो हैं वो उनका कितना कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। We shall use the city of Raipur as a case study to try and understand these factors in the production process. For this, the teacher students should study the local production process in their area and link them with these concepts to develop their understanding. ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको रायपुर की एक केस स्टडी दी हुई है ताकि आपको प्रोडक्शन प्रोसेस समझने में आसानी हो। आप अपने आसपास की कोई भी लोकल प्रोडक्शन प्रोसेस को भी देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। ठीक है, रायपुर एन एक्सपांडिंग सिटी। Raipur is the capital of Chhattisgarh state. The city is also the headquarters of Raipur district. It it was declared the capital in 2000, which Chhattisgarh became an independent when Chhattisgarh became an independent state. The city has developed rapidly since then to become a major Indian metropolis by 2011। ठीक है, देखिए रायपुर जो है वो छत्तीसगढ़ स्टेट का कैपिटल सिटी है। जब जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था 2000 में, उसके बाद से रायपुर को कैपिटल बनाया गया है। और उसके बाद से जो सिटी है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से डेवलप कर रहा है ताकि वो एक मेजर मेट्रोपोलिस सिटी बन जाए। The rich mineral deposit and forest resources available in various parts of the state have contributed to the city's industrial growth. Several important steel plants and cement factories have been established in and around Raipur, the city of the regional center for electricity and steel production, leading to its emergence as an industrial hub of Central and East India. It is one of the it is one of the country's prominent markets, with the state's vast forest resources making it an important trading post for forest produce. Its its wholesale market serves the needs of not just Chhattisgarh but several districts of the adjoining state of Odisha। देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर रायपुर में, ठीक है, रायपुर में आपका क्या है, काफ़ी ज़्यादा रिच मिनरल डिपॉजिट्स है, साथ में फॉरेस्ट रिसोर्सेज भी आपको आसपास के स्टेट से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं। बहुत सारे इम्पोर्टेंट स्टील प्लांट, सीमेंट फैक्ट्रीज रायपुर में स्टैब्लिश्ड हैं। साथ में जो रायपुर सिटी है वो आपका रीजनल सेंटर है इलेक्ट्रिसिटी एंड स्टील प्रोडक्शन का। अब इस वजह से क्या हो रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा एक इंडस्ट्रियल हब धीरे धीरे बनता जा रहा है सेंट्रल और ईस्ट इंडिया के लिए। ये एक ये एक कंट्री का प्रोमिनेंट मार्केट भी है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो फॉरेस्ट रिसोर्सेस रहते हैं, स्टेट का जो बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट रिसोर्स है वो आपका यहाँ पर आपको मिल सकता है ताकि वो दूसरे, मतलब
वहाँ पर आपको मिलता है। एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग पोस्ट भी है फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए। यहाँ पर होलसेल मार्केट है जो कि सिर्फ छत्तीसगढ़ के अलावा बाकी सारे अदर डिस्ट्रिक्ट्स को भी सर्व करता है। ठीक है, बहुत सारे अदर डिस्ट्रिक्ट्स में भी वो मार्केट जो है वो काम आता है। Raipur is easily accessible from other important cities of India by the network of national and state highways. NH46 connecting Mumbai and Kolkata passes through the city. NH30 connects it to Vishakhapatnam. Other cities like Bhopal, New Delhi, Mumbai, Bhubaneswar and Nagpur are also connected by rail or road. ठीक है, रायपुर जो है वो आसानी से पहुंचने वाला एक्सेसिबल सिटी है, आसानी से उस वहाँ पर एक्सेस किया जा सकता है बाकी सारे अदर इम्पोर्टेंट सिटीज़ के साथ में। इंडिया की जो अदर इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं उनके साथ रायपुर आसानी से वहाँ पर आना जाना जो भी है वो आपका किया जा सकता है। रायपुर में वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नेशनल हाईवेज हैं। ठीक है, नेशनल हाईवेज का कनेक्शन है, नेटवर्क है, स्टेट हाईवेज हैं। ठीक है, जैसे कि आपका NH46 मुंबई और कोलकाता को कनेक्ट करता है। ठीक है, मुंबई और कोलकाता को रायपुर से कनेक्ट करता है। साथ में NH30 है जो कि विशाखापट्टनम को कनेक्ट करता है। और भी बहुत सारी अदर अदर सिटीज़ हैं जैसे कि आपका भोपाल, दिल्ली, मुंबई, भुवनेश्वर, नागपुर, जो कि या तो रोड से या फिर रेल से कनेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ओवर द लास्ट 15 ईयर्स large number of people from the rural areas have migrated to Raipur and its suburbs in search of employment in factories and offices. The city's geological location, easy access by road and availability of civic facilities are major factors that draw people to it. ठीक है, पिछले लास्ट 15 साल में बहुत सारे लोग जो हैं वो रूरल एरिया से माइग्रेट होकर रायपुर आ चुके हैं एम्प्लॉयमेंट के मतलब फैक्ट्रीज में और ऑफिस में वर्क करने के लिए। ठीक है, ये जो सिटी का जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिबल है रोड से या फिर आप किसी भी सिविक फैसिलिटीज से, मतलब किसी भी तरीके से आपके रायपुर जो है वो पहुंच सकते हो, चाहे वो रोड हो, रेल हो या आपका एयरवेज हो। अब इसका जो अवेलेबिलिटी है जो सिविक फैसिलिटीज़ की जो अवेलेबिलिटी वहाँ पर है, जिस वजह से यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वहाँ पर आ रहे हैं। ये एक क्या है आपका मेजर फैक्टर है कि लोग माइग्रेट होकर रायपुर आ रहे हैं। ठीक है, मैप 18.2 shows the spread of industry, market and civic services in Raipur. The industrial hub is located in the north of the city. It is a planned hub with Urla, Siltara, Baranpur being important centers of small and medium enterprises। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो आपको मैप दिया हुआ है उसमें आपको रायपुर का एक पार्ट आपको दिखा रहा है जिसमें कि यहाँ पर एक मतलब एक यहाँ पर प्लान्ड डेवलपमेंट यहाँ पर होने वाला है रायपुर सिटी में। यहाँ पर आपका प्लान्ड डेवलपमेंट होगा जो कि यहाँ पर आपका नाम क्या है, उरला, सिलतरा, बर्नपुर, ये सारा जो एक साथ लेकर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक हब जैसा बनाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं उरला। ठीक है, उरला और नेक्स्ट कहाँ था। ठीक है, ये सारी जगह को मतलब मिलाकर यहाँ पर एक प्लान्ड हब सेंटर बनाया जाएगा जो कि इंडस्ट्रियल हब होगा और काफ़ी ज़्यादा छोटे बड़े एंटरप्राइजेस के लिए इम्पोर्टेंट होगा। नेक्स्ट है आपका लैंड यूटिलाइजेशन इन रायपुर। In rural areas, land is primarily used for agriculture and people live in villages near their agricultural fields. In a city, there is no agriculture. People follow other occupations or do other kinds of activities. Land is used to establish factories and construct government administrative offices, commercial offices and residential buildings, or provide services like roads, hospitals, schools, मार्केट, शॉप्स एक्सेट्रा। देखिए रूरल एरियाज पे क्या होता है, जो लैंड है उसमें ज़्यादातर जो लैंड है वो आपका एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया जाता है या फिर लोग वहाँ पर मतलब एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया जाता है और जो लोग रहते हैं वो अपने जो उनका जो फील्ड है एग्रीकल्चर में वहाँ उसके आसपास में लोग जो रहते हैं। एक ऐसी सिटी, लेकिन लेकिन सिटी में क्या होता है आपका एग्रीकल्चर जो है वो नहीं होता, लोग दूसरे ऑक्यूपेशंस पे रहते हैं जिसका कोई भी कनेक्शन मतलब दूसरे ऑक्यूपेशन पे वर्क करते हैं, एग्रीकल्चर से उनका कोई कनेक्शन नहीं रहता है। लैंड जो है वो
लैंड सिटी में लैंड जो है वो आपका फैक्ट्रीज बनाने के लिए, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज बनाने के लिए, कमर्शियल ऑफिस बनाने के लिए और बिल्डिंग्स वगैरह बनाने के लिए, रहने के लिए, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स रहने के लिए बनाने के लिए, और इस तरीके से आपका सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए लैंड का यूटिलाइजेशन जो है वो होता है। जैसे कि आपका रोड, स्कूल, हॉस्पिटल, ये सारी चीज़ें बनाने के लिए यूज़ किया जाता है लैंड का। The government provides many services to people living in urban areas like transport facilities, electricity, water, etc. Apart from the government, private companies also provide these services in some areas. ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो लोगों को सर्विस प्रोवाइड करती है अर्बन एरियाज में, सिटीज़ में, ठीक है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एक्सेट्रा। गवर्नमेंट के अलावा यहाँ पर क्या है, आपका प्राइवेट कंपनीज भी हैं जो कि ये सर्विसेज जो है वो कुछ एरियाज पे प्रोवाइड करती हैं। A few years ago, the state government collected data of land utilization in the city and formulated an alternate plan for land use. One suggestion in the plan was to increase the land located of entertainment and leisure, parks, open space, etc. from 3% to 21%. ठीक है, देखिए कुछ साल पहले स्टेट गवर्नमेंट ने सर्वे किया था और डाटा जो है वो कलेक्ट किया था लैंड यूटिलाइजेशन, सिटीज़ में कितना लैंड यूटिलाइज होता है और किस तरीके से वहाँ पर अल्टरन मतलब किस तरीके से वहाँ का लैंड जो है यूटिलाइज होता है। और उसके बाद में डाटा देखने के बाद में उन्होंने एक अल्टरनेट प्लान फॉर्मुलेट किया, बनाया कि किस तरीके से लैंड का यूज़ होना चाहिए। एक सजेशन जो था वो उनको मिला, वो ये था कि जो लैंड लैंड एरिया में जो एंटरटेनमेंट और लेस्चर का जो एरिया है, ठीक है, आराम करने का और एंटरटेनमेंट करने का जो एरिया है उसको बढ़ाकर 3% से बढ़ाकर 21% कर दिया जाए। ठीक है, ये जो है वो आपका अर्बन एंड रूरल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है 2013 की। ठीक है, यहाँ पर आपका एक पाई चार्ट दिया हुआ है जिसमें आपका ब्लू कलर से आपका रेसिडेंस, अपार्टमेंट, क्वार्टर्स का एरिया शो कर रहा है। जो रेड कलर है वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस का एरिया है। ग्रीन में ऑफिस है। पर्पल जो है वो आपका ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज दिखा रहा है। ये जो 3% है जो ब्लू है वो आपका एंटरटेनमेंट का है, और बाकी का जो 11% है वो आपका अदर चीज़ों में जो लैंड यूज होता है वो है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास पे हम यहाँ से पढ़ेंगे स्टडी द लैंड, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। आपका आज के लिए इतना ही, थैंक यू।